Hi all, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and editorial analysis of Indian Express of 3rd of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook, Telegram and rest other medias. Now let's on to the main video. First news about the fire break, that is related to the places in news of the environment section that will be used. So recently DYSO की एग्ज़ाम होने वाली है class 3 and it will be very important and also important for the UPSC point of view because there is a fire outbreak. एक critically endangered species है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. उसके that is it is a critically endangered species. उसकी कैटेगरी क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड. और इसके बाद की अगर वो कंडीशन होगी तो एक्सटिंक्ट होने वाली है. सो वल्नरेबल कैटेगरी में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज दैट इज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. उसका एक नेशनल पार्क है नलिया, दैट इज़ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन लाल बूडिया GIB सेंचुरी. इस सेंचुरी में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज दैट इज़ नलिया रहती है, वहाँ पर आग लगी है. सो दैट प्लेस इज़ वेरी फेमस. उसके अलावा एक जामनगर में भी है, एक कच्छ में भी है. सो देयर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. वन इज सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज वन ऑफ द critically endangered species and its sanctuary is located in the Kutch, that is the Nalia region of GIB sanctuary. Second important news again from the Gujarat sector is Ahmedabad Commission, that is a company based on Ahmedabad based company, has joined hands with the Manipur Corporation or Manipur Municipal Corporation for development of waste to energy program. Okay, so this innovative Eco Care Private Limited, that is an Ahmedabad based firm, has recently commissioned a 120 tons per day, यानी कि एक दिन में 120 टन वेस्ट से एनर्जी बनाने का प्रोजेक्ट मणिपुर में किस सिटी की कंपनी लिया है? तो दैट इज अहमदाबाद. सिंपल वन लाइनर MCQ related to the environment. So there are two news of environment. One was of the great bustard and second is the waste to energy company, that is nothing but the innovative Eco Care Private Limited company. Now next move to the national news, that is we know that elections are going on in West Bengal and Assam. और उसी से रिलेटेड दो न्यूज़ है, दोनों ही असम स्टेट से है. रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि EVM, that is a polled EVM, electronic voting machine, has been found in a car of a brother of a recently contesting BJP candidate. Now the very interesting news is after the ending of election the polled EVM are sealed and these the function of the presiding officer, there is a presiding officer in every booth and his duty is to take away that particular polled EVM which is being sealed to the government safe house, safe centers. Okay, and in that course of taking out the EVM, what happened is actually the strong room centers, their vehicles get disrupted, उनकी गाड़ी बीच में ख़राब हो जाती है एंड वो लिफ्ट मांगते हैं. ऐसा इसी का वर्जन है. इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें कहा गया है कि वो किसी से लिफ्ट मांगते हैं एंड बाय चांस वो गाड़ी निकलती है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए एक व्यक्ति मिस्टर पॉल के भाई की, एंड he belongs to the BJP. And then when he is reaching the safe house or the strong room, they are collected by the local workers of the opposition party and they claim, और वो कहते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि इसके EVM में छेड़छाड़ हो रही थी क्योंकि ये प्राइवेट गाड़ी से जा रहा था. तो उस पर इलेक्शन कमीशन के क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या नियम है वो हम देखते हैं. तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, again article 324 of the constitution gives the power to maintain, conduct and superintend, यानी कि इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की देख रेख करना और इलेक्शन के ओवरऑल जितने भी इश्यूज है सबको देखने की ताकत किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और वो किसके द्वारा हेड की जाती है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ दो और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. बोथ ऑल थ्री आर हैविंग द सेम पावर बट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अ kind of CEO of the Election Commission of India and he decides
द डेट ऑफ इलेक्शन, टाइमिंग ऑफ इलेक्शन, कितने फेज़ में इलेक्शन होगी, कहाँ कहाँ पे इलेक्शन होगी। और जब इलेक्शन एक बार डिक्लेयर हो जाता है तो उस स्टेट की गवर्नेंस, जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और सारी चीज़ें, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। यानी कि जो ऑफिसर्स हैं, IAS, IPS, सेंट्रल ऑफिसर्स, दे रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, नॉट टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाती है। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, गवर्नेंस के थोड़े बहुत जो काम है, जो पब्लिक सर्विस वगैरह काम छोड़ के, जो बेसिकली जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पावर मूव्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीन्स द IAS and IPS officers. So they become the supreme authority, even bigger than the ministers, MLAs and chief minister in the particular state. Okay, so in order directly, the center becomes powerful, center under the Election Commission of India. So it is the duty of Election Commission of India to maintain free and fair election in India. अब फ्री और फेयर इलेक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? पीपल का ट्रस्ट होना चाहिए। तो जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि वो 4 व्यक्ति जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसे सस्पेंड कर दिया गया। और उस बूथ पर, जैसा आपको पता होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे बूथ होते हैं, उस एक पर्टिकुलर बूथ पर फिर से री इलेक्शन होगा। ऑल्दो जो EVM प्राइवेट गाड़ी में मिली थी वो टेम्पर्ड नहीं थी, वो सील्ड थी और उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई थी, फिर भी टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर ट्रस्ट of the people in the election, they decided to reconduct the election. So this is what the role of election commission, what it should have been done, और उसने जो करना चाहिए था वो किया, ताकि लोगों का विश्वास वोटिंग प्रक्रिया में बना रहे। ठीक है, तो ये एक हमने देखा इलेक्शन कमीशन की पावर्स अंडर आर्टिकल 324। नाउ उसी इलेक्शन कमीशन को पावर ये भी दी गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल्स को असाइन करना, कौन सी पार्टी का कौन सा सिंबल होगा, अगर पार्टी टूटती है तो कौन सा सिंबल किसके साथ जाएगा, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी, वो सबको देखना। और चुनाव के दौरान मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC, सो दे आर सर्टेन डिफाइंड कोड ऑफ कंडक्ट्स अंडर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट, RPA 1950 एंड 1951। दो अलग अलग एक्ट पास हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। उसमें लॉ को जानने की पूरी ज़रूरत नहीं है, बट उसमें कुछ कंडक्ट हैं कि इलेक्शन के टाइम आपको ये करना है और ये नहीं करना है। तो उस कंडक्ट का पालन हो रहा है या नहीं, उसी में एक आता है कॉन्सेप्ट हेट स्पीच। ठीक है, भड़काऊ भाषण, गलत बयानी, लोगों को उकसाना, भड़काना। तो इस तरह के एक भड़काऊ भाषण दे रहे थे हेमंत बिश्व शर्मा, दैट इज़ द prominent leader of BJP in Assam, and the election commission has decided to ban him in the rest। यानी कि असम में एक फेज़ का चुनाव हो चुका है और जितने भी फेज़ अगर होने वाले हैं उसमें ये व्यक्ति हेमंत बिश्व शर्मा विल नॉट बी अलाउड टू कैंपेन। सो अगेन दिस इज़ द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इससे पहले इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि आप किसी के खिलाफ एक्शन ले रहे, वो टूथलेस टाइगर बन गया हुआ है। ठीक है, ये BJP के इशारों पर काम कर रहा है, जो अपनी छवि को लोगों का इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के प्रति विश्वास बना रहे। पीपल विल हैव टू मेंटेन द ट्रस्ट इन द इलेक्शंस एज वेल एज इलेक्शन कमीशन। दे हैव टेकन 2 very strong decisions. One is the recounting of the booth and the place is Ratnabadi. Okay, and the person they have executed, यानी कि दूसरे पर्सन को अलाउड नहीं किया है, बैन किया है, दैट इज़ हेमंत बिश्व शर्मा। ही इज़ the present health minister of Assam and he is the number 2 of the BJP government, and even if the BJP wins, he might be the next chief minister of Assam. Presently the chief minister of Assam is Sarbanand Sonowal. Most important another news from the southern state is Goa's harvest festival hit by the COVID year. Now इसमें important चीज़ ये है कि इनका एक सेलिब्रेशन होता है, होता है सिग्मोत्सव। ओके, सो सिग्मो या सिग्मोत्सव। Now what it is important for? So it is important for rice cultivation. ठीक है, paddy cultivation by the tribal communities of Goa, they celebrate it as Shigmotsav। और उस शिग्मोत्सव पे क्या होता है? So there is a tribal dance that is called घोड़ो मोडिनी। ठीक है, which is nothing but a घोड़ो मोडिनी means a dance of the horse working committee। ऐसे वॉरियर्स जो घोड़े पर, ठीक है, जिसको कहते थे घुड़सवार, तो घुड़सवार लोगों की जो डांस, ट्राइबल डांस को कहते हैं घोड़ो मेदनी। ये डांस कहाँ होता है? गोवा में, दैट इज़ अ कोकण एरिया।
क्यों होता है? टू सेलिब्रेट द सिग्मोत्सव. एंड वाई सिग्मोत्सव इम्पॉर्टेंट? So Sigmotsav is important for celebrating the rice and the paddy cultivation based on Hindu calendar. So there are 3 points. From art and culture perspective, it is very important in UPSC exam, that is they might ask these types of questions and places and news relating the current cultural news and the ongoing conditions. So what is Sigmotsav? So it is celebrated in Goa. It is basically a tribal festival related to the production of rice, where a Ghodo Moduni dance is performed by the horse warriors. Now move on to the articles. Mr. Prakash Singh, the ex-DGP of the Uttar Pradesh, Director General of Police, Uttar Pradesh, has written a superb, stupendous article on police systems and the current running scandal. He has termed the word scandal between the Maharashtra Home Minister, Mumbai Police Commissioner, and that fellow Sachin Waze. So I will recommend you to go and read this article. It is very important. It will enhance your English and the attribution power as well as the legal languages. So in this particular article इन्होंने 3-4 केसेस का हवाला देते हुए कहा है कि जब परमबीर सिंह who was the chief minister and has been shifted to the home guard, he went to the Supreme Court that challenging his transfer, that government is illegitimately transferring my post. The Supreme Court had said you should go to the first Bombay High Court under Article 226. तो आर्टिकल 32 के अंदर गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट में जाइए 226 के तहत. दैट इज सेम. 32 and 226 आर द सेम. बोथ आर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स. द ओनली डिफरेंस इज 226 इज फॉर हाई कोर्ट्स. So if your rights are violated, you can go to higher courts by 226 directly, and you can go to Supreme Court also by Article 32. So based on this, the Supreme Court has ordered him to go into 226 to the Bombay High Court, and Bombay High Court, instead of recurring the whole cause, instead of making the whole investigation in the matter, has asked the Commissioner Parambir Singh also that why you didn't take the FIR. आपने FIR क्यों नहीं की? अगर आपकी मर्ज़ी से आपके नाक के नीचे ये व्यक्ति, आपके होम मिनिस्टर आपको लड़ा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपके ऑफिसर्स को चंदा वसूली करने के लिए कह रहे हैं हर महीने 1,000 रुपये, हर महीने 100 करोड़ रुपये, सॉरी. सो आपको जब ये पता था तो आपने क्यों नहीं FIR की? सो उल्टा उनसे ही क्वेश्चन पूछा गया. तो यहाँ पर प्रकाश सिंह जी ये कह रहे हैं कि जब ऐसे केस में जहाँ होम मिनिस्टर हो, पुलिस हो, यानी कि लेजिस्लेटर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव. So there are 3 organs of government. One is legislature, executive, and third is judiciary. अब ये दोनों सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, इनको कान खींचकर काम कराने की जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी की. सो जब ये न्यूज़ में दोनों व्यक्ति पर नाम आ रहा है, दोनों लोग फंसे हुए हैं, होम मिनिस्टर पर डायरेक्टली चार्ज आ रहे हैं एंड जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस कमिश्नर है, उस पर भी नाम आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसे हाई कोर्ट में ना भेजकर एक CBI इंक्वायरी करवानी चाहिए थी, ताकि लोगों का विश्वास पुलिस और न्याय और कानून व्यवस्था में बना रहता है. क्योंकि हुआ ये है कि लेजिस्लेचर और पुलिस दोनों की मिल भगत, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मीन्स क्राइम बाय प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो ऐसा नहीं है कि कोई एक पुलिस ऑफिसर मुकेश अंबानी के घर पे जेलेटिन रॉड रख दे और बड़े बड़े होटल से हर महीने 1,000-100 करोड़ रुपए का उगाही करता हो, एब्डक्शन एक्सटॉर्शन करता हो और उसके सीनियर्स को ये बात पता ना हो. सो दिस इज़ नॉट. तो इनिशियली व्हाट वाज हैपनिंग, द कमिश्नर एंड द होम मिनिस्टर वाज वर्किंग टुगेदर, दे वर वर्किंग हैंड इन हैंड. और जब फंसने पे आए तो इसने इसको ट्रांसफ़र करवा दिया. अब फिर ये इसके बारे में आरोप लगा रहे हैं. तो पहले दोज वेयर द पार्टनर्स इन क्राइम, नाउ दे आर acting against one another. So in order to maintain the trust of the people in the system, Mr. Prakash Singh said that government or the High Court or even the Supreme Court in the first instance should have taken the matter into the cognizance, and they should have sent it for independent inquiry under the CBI or under a retired judge of the Supreme Court. But ऐसा नहीं करने के कारण लोगों का विश्वास इसमें ख़त्म होते जा रहा है. और कुछ ऐसे लोग किसी शहर में, ठीक है, बार्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, उनसे जो पुलिस वाला चंदा ले रहा है,
उगाही, एक तरह से एक्सटॉर्शन ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई धर्म का काम तो करते नहीं होंगे। सो दे माइट ऑल्सो नॉट बी फॉलोइंग सम ऑर्डर्स लाइक फायर सेफ्टी ऑडिट्स, सेलिंग ऑडिट्स, लिमिट ऑडिट्स, मैन कंस्ट्रक्शन ऑडिट्स, ठीक है। बिल्डिंग बनाने में जो कंस्ट्रक्शन परमिशन लेने होते हैं वो उन्होंने ठीक से नहीं लिए होंगे, फायर सेफ्टी का प्रोटोकॉल नहीं पालन किया होगा, पार्किंग प्रोटोकॉल नहीं पालन किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी चुराते होंगे, इलीगल सेल्स ऑफ ड्रग्स, नारकोटिक्स, वो सब चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। अगर कोई चंदा देकर अपना काम निपटा रहा है तो डेट्स वाई कि वो कोई गलत काम कर रहा होगा। तो इससे क्या होता है कि पुलिस तो अपना चंदा ले लेती है, और ये जो बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स ओनर्स जो अपना गलत काम कंटिन्यू करते रहते हैं, और इसी वजह से नुकसान किसका होता है? द कॉमन मैन, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत सारे थिएटर्स में आग लग जाती है, पब्स में आग लग जाती है, हॉस्पिटल्स में आग लग जाती है, तो इनको परमिशन कौन देता है? दिस करप्ट ऑफिशियल्स। और बदले में क्या करते हैं? ये पैसे लेते हैं, और ये पैसे किसको पहुंचाते हैं? अपने पॉलिटिकल मास्टर्स, इवन टू द गवर्नमेंट। सो व्हाट ही इज सेइंग दैट द कोर्ट शुड हैव टेकन एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, जस्ट लाइक द मैटर इन द पुलिस रिफॉर्म केस। और पुलिस रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। हमारा पुलिस लॉ जो है अभी भी 1861 के पुलिस रिफॉर्म, पुलिस एक्ट जो कॉर्नवालिस लाए थे, कॉर्नवालिस के अंदर से ही काम चल रही है अभी, ठीक है। हमने उस पर रिफॉर्म नहीं किया, कुछ अलग अलग स्टेट्स ने थोड़े बहुत रिफॉर्म किए हैं, लेकिन वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द सेम 1860s लॉज ऑफ द पुलिस कोड एंड पुलिस मैनुअल। सो वी नीड अ पुलिस रिफॉर्म एंड दैट शुड हैव बीन डन। अगर वो लोग सरकार, इनका कहना है कि अगर सरकार और एग्जीक्यूटिव खुद से नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आगे बढ़कर ज़बरदस्ती करवाने की ज़रूरत है। नाउ दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल। Now move on to the next article, U-turn as a self goal. So this is article is based on the Pakistan U-turn method. So पाकिस्तान ने इंडिया को अप्रैल फुल बनाया। 1 अप्रैल को दे सेड कि ओके वी विल स्टार्ट द ट्रेड रादर इम्पोर्ट आफ्टर 5th of August when India modified the 370 article and took out the statehood and gave the UT category to both Jammu and Kashmir and Ladakh. Pakistan unilaterally banned all the import from India, and that import included sugarcane as well as cotton. Now due to the COVID times, the prices of sugarcane and cotton has increased in Pakistan at a very high level, so their ministry decided to take import from India and Pakistan government was ready with it. But after getting a political pressure, the pressure from the pressure groups like army, वहाँ के लोकल जो क्लैरिक्स होते हैं, मुस्लिम हेड्स, रिलीजियस हेड्स, मौलानाज, छोटी छोटी पार्टीज़, उनके प्रेशर में आके पाकिस्तान गवर्नमेंट हैड टू टेक बैक द डिसीजन। तो यही कह रहा है कि इस तरह का यू टर्न अगर आप लोगे तो डेट विल बी ए सेल्फ गोल। सेल्फ गोल मीन्स अपना ही नुकसान करोगे, बिकॉज पाकिस्तान इज़ इन FATF ग्रे लिस्ट, कभी भी वो ब्लैक लिस्ट हो सकता है। तो जो चंदा मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। USA ने उसको चंदा देना बंद कर दिया भाई, बिकॉज ही इज़ मूविंग टुवर्ड्स चाइना। चाइना जो उसे पैसे दे रहा है वो फ्री में नहीं दे रहा है, इज़ टेकिंग अ लोन, ओके, और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देना, वो सारे लोन चुकाने होंगे, वो चुका तो पाएगा नहीं, जस्ट लाइक द श्रीलंकन डेब्ट ट्रैप्ड। तो क्या करेगा? उसके बदले के जो पूरा जो पोर्ट है उनका ग्वादर वो कब्ज़ा करके रखा है। पूरा CPEC प्रोजेक्ट में जो चाइनीज़ इंजीनियर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जो करना कर रहे हैं। दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉ एंड ऑर्डर्स, नॉट फॉलोइंग द लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस, दे आर टॉर्चरिंग द लोकल पाकिस्तानी पीपल। वहाँ के लोग, ये इस काइंड ऑफ लाइक एन कॉलोनियलिज्म जैसा ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 200 साल पहले किया था, वो चीज़ चाइना वापस से कर रहा है। द ओनली थिंग इज़ इट इज़ मोर इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। सो इन सब चीज़ों को अगर ठीक करना है तो उसको इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए, ऐसा ये ऑथर कह रहे हैं। बट वो उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, आर्मी का प्रेशर है, लोकल रिलीजियस हेड्स का प्रेशर है कि आप इंडिया से फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं। और कश्मीर 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 का जो राग अलाप रहे हैं उसने उनको कुछ फ़ायदा आज तक तो पहुंचाया नहीं है। सो इस चीज़ों को पाकिस्तान को समझना चाहिए, एंड एज अ कंट्री, एज अ नेशन, दे शुड वर्क टुवर्ड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, नॉट ऑन द फेक आर्टिकल्स। So this was what about all today's news. We'll see you tomorrow in the next video. तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैव अ गुड डे।